Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we are going to do question number 40 of your book T.S. Kariwal, and our chapter that we are doing is chapter retirement or death of a partner. So let's start reading our question, that is question number 40. So as per question number 40, X, Y, Z are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1, and the balance sheet is given. So Z retired on 1st April on following terms: that the goodwill of the firm is to be valued at rupees 34800, value of the patent is to be reduced by 20%, and of machinery it will be to 90%. Provision for doubtful debt is to be created at the rate of 6% on debtors, and Z took over the investment at market value. Liability of workmen compensation to the extent of rupees 750 is to be created, and the liability of 4000 including in the creditors is not to be paid. So amount due to the Z to be paid as follows: that they are given that 5067 has been paid immediately, and the balance in 1 year, and the balance by a draft for 3 months. We have to give the necessary entries for the treatment of goodwill, prepare the revaluation account, capital account, and the balance sheet of the new firm. So let's start doing our question, that is question number 40 of your book T.S. Kariwal. So in this question we have to pass the necessary journal entries also. So in journal entries we have been already given the goodwill in the balance sheet, so that goodwill is to be distributed among the old partners. The old partners are X, Y, and Z. So X capital account debit, Y's capital account debit, and Z's capital account debit. To goodwill account. So 6000 is to be distributed among 3 partners in 3:2:1. So the amount will be 3000, 2000, and 1000. Next, so we are given the goodwill, and we have to calculate the goodwill adjustment entry. So that will be, as we know that the Z is retiring and there is no future ratio given, तो the sacrifice ratio जो है हमारे पास X और Y का, वो क्या होगा, X and Y जो होंगे वो क्या होंगे कि sacrifice नहीं करेंगे क्योंकि ये retirement का chapter कर रहे हैं. X and Y will be gaining and Z will be in a loss ratio, तो वो लॉस में होगा. तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री डालते हैं. तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जेड कैपिटल अकाउंट. So here we will calculate. So we know that the Z share is 1/6. तो 34800 का 1/6 शेयर बना 5800. तो उसको हम 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट का मास टू बी 3480 and 2820. डन. तो ये हमारी गुडविल की जर्नल एंट्रीज. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट. So in revaluation account, let me first make the format of revaluation account. So
revaluation account, particulars rupees particulars. सबसे पहले हमें दे रखा है पेटेंट्स रिड्यूस हुए हैं, तो 2 पेटेंट्स 200. मशीनरी रिड्यूस हुई है, तो मशीनरी 5000. फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोविज़न क्रिएट किए गए हैं, तो एंट्री विल बी टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, पूरा लिखना है 400 रुपीज़. फिर इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे ले गए, तो मार्केट वैल्यू जो है वो 17,600 है, तो इन्वेस्टमेंट 15,000 की है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो बाय इन्वेस्टमेंट 2600 इज द डिफरेंस. क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए हैं, तो बाय क्रेडिटर्स कितने से 4000. और कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिवैल्यूएशन लॉस है, तो XYZ 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये अमाउंट है 800. will be distributed among all the partners in old profit sharing ratio. तो X को मिल जाएगा 400, Y को 267 and Z को 133. Done. Now after this we will make the capital account. तो capital account बनाते हैं. There are 3 partners, X, Y. So यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दो, एंट्री ज़्यादा है, एंड Z. X, Y and Z. Partners, capital account, particulars, X, Y, Z and credit, debit, particulars, X, Y and Z. Balances we have been already given, तो by balance BD 68,000, 32,000 and 21,000. Then हमारे पास क्या एंट्री है, गुडविल की है एंट्री, तो बाय X कैपिटल अकाउंट बाय Y कैपिटल अकाउंट 3480 2820 और इधर आ जाएगा 2 Z कैपिटल अकाउंट. सेकेंड एंट्री पोस्ट कर रही हूँ ये वाली. एंड 3 2 2 10. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट की है, तो गुडविल भी आ जाएगी यहाँ पे, तो गुडविल अकाउंट 3,000 2,000 1,000. देन रिवैल्यूएशन का लॉसेस भी आ जाएंगे, तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ये 400 267 and 133. राइट, डन. तो हमारे क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स 750 को छोड़ के,
तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गई इतनी। डन। और फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इन्वेस्टमेंट का भी रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6000 को, तो वो अमाउंट 3000, 2000 एंड 1000। डन। फिर हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है कि उसने 75067 इमीडिएटली कैश में पे कर दिया, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी टू बैंक 5067, राइट। Then 50% of the balance in 1 year and the balance by a draft for 3 months, यही लिखा है उन्होंने। तो सबसे पहले हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी 17600 की, तो Z ने उसे ले लिया एट द मार्केट वैल्यू, तो टू इन्वेस्टमेंट 17600। डन। फिर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बिल पेबल हैं हमारे वो आ जाएंगे, बैलेंस अमाउंट का 50% जो है वो बैलेंस जो है वो 1 ईयर में होगा, 50% जो है बिल पेबल में होगा, तो बिल पेबल और बाकी क्या बन जाएगा, टू Z's लोन अकाउंट। तो अगर आप इनका बैलेंस निकालोगे तो हम कैलकुलेट करते हैं एक बार, 76710,120 एंड हेयर कम्स आउट टू बी 31413, और यहाँ पे आपका 2500 बैलेंस होगा, तो ये सॉरी यहाँ पे टू बैलेंस सीधी, और जो आपका 2500 है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50%, 50%। तो यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है। डन। एंड आफ्टर दिस वी विल मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट। assets amount rupees, liabilities amount rupees। तो एसेट में कैश है 5750, उसमें से हमने पे कर दिया 5067, तो बैलेंस हमारे पास रह गया 683। स्टॉक हमारे पास है 30,000 का, पेटेंट है 8000 के, डेटर्स थे 40,000, और उसमें से हमने यहाँ पे अभी प्रोविज़न बनाई प्रोविज़न, मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखाया, प्रोविज़न बनी आपकी 2000 प्लस 4000, 2400 की प्रोविज़न। डन। देन मशीनरी है हमारे पास 4500, ये हमारा एसेट है, इस साइड पे और कुछ नहीं आएगा। क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हो गए 17,000 रह गया। क्लेम पड़ा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 750 का। बिल पेबल है हमारे यहाँ पे, बिल पेबल 2500। फिर लास्ट में एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल
and Z's loan account. तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आई है 67120, 31413 एंड 2500. तो रेस्ट अगर हम इन दोनों का साइड का टोटल करेंगे तो वी गेट अ बैलेंस ऑफ 121,283. 121,283. So this is all about your today's topic, that is question number 40 of your chapter TS Karewal. So please complete your notebook till this topic, that is question number 42. Your notebook should be complete. So in the next lecture we will be continuing with the topic adjustment of capitals. So see you in the next lecture, right? Thank you very much. Take care.